Assalamu alaikum, especially Dr. Mudassar. Thank you very much for joining, as well as Asim and Bilal. बेसिकली आई थिंक जो डॉक्टर मुदस्सर ने ये काम किया है, दिस इज एक्सीलेंट वर्क, और हमारे तकरीबन मैं तो ये कहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी को ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक कोर्स तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और अगर उससे रिलेटेड जो है वो सर्टिफिकेशंस भी उस कोर्स का हिस्सा बना लें और वो असाइनमेंट्स वो बन जाएं, जो सर्टिफिकेशंस हैं, और उसकी बेसिस पे उनके ग्रेड्स वगैरह पे शामिल हो जाएं, बाकी भी आपकी दूसरी भी असाइनमेंट्स होती हैं, तो उसमें बाय द टाइम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट ही और शी विल हैव कपल ऑफ सर्टिफिकेशन एट हैंड, और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो एज मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशंस होती हैं ये वेंडर सर्टिफाइड होती हैं, सो देयर कुड बी नो मैच टू दीज सर्टिफिकेशन। सो उस लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट। और अभी पिछले दिनों मेरी डॉक्टर अयूब अलवी से बात हो रही थी, एक्चुअली ही will share this with other faculty members also, and he will promote. इसमें एक और भी चीज़ जो हम कर सकते हैं मिल के, वो ये है कि हम सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज बिल्ड करें डिफरेंट वेंडर्स की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे। वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे की साइट है, फोर्टीनेट है, सिस्को है, इसी तरीके से क्लाउड रिलेटेड होगी, आईओटी रिलेटेड होगी। तो हम वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज जब बिल्ड करेंगे, उसमें फिर हम वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड लैब सपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा जब वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज बिल्ड हुआ होगा, तो उसमें जो स्टूडेंट्स एंगेज होंगे वो भी अपने आप को एक प्राइड फील करते हैं कि हम सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज के मेंबर हैं, और दे हैव एक्स्ट्रा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू दैट. So this is another action which we were discussing कि ये भी हमें यूनिवर्सिटियों में establish करना चाहिए. So with that, we will listen to Dr. Mudassar what all he has done, or which shall become a learning experience for other universities and other faculty members also. Thank you. Thank you, Dr. Ji, Dr. Mudassar, the floor is yours. You can go ahead and share your screen also. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum sir, and thank you very much for your very kind words. And I guess I tried something which became interesting as well. तो थोड़ा मैं उसके साथ शेयर करता हूँ कि what was the experience, और उसके बाद फिर एक छोटा सा ओवरव्यू क्लाउड सिक्योरिटी का. It would not cover everything, but still it will give an idea what this cloud security thing is. So let me share my screen. Okay, so it's a brief introduction of cloud security, and also my some brief experience as well. So I am Mudassar. I am working in FAST since last semester, FAST Islamabad campus. इससे पहले I was in Sweden. वहाँ पे मैं last 2 years मैंने जो spend किए, that was I did my postdoc, and then I also did some project work. EU का एक project था, I was part of that, leading my organization, research organization थी RISE के नाम से. उसमें अपने project को lead कर रहा था, अपने part को. उससे पहले मैंने साइबर क्लाउड सिक्योरिटी में ही PhD की थी, और स्वीडन से की थी, और उसी रिसर्च लैब से की थी in 2014. So this is my brief background. With this, I would start with sharing this activity that Dr. Rashid has just mentioned. So last semester I got an opportunity to teach cloud security. और cloud security का course जो है as such I could not find that in universities. Cloud computing के ऊपर तो different universities पढ़ा रही थी, cloud security पे नहीं होता.
So then I thought how that course could be designed. Then I had an experience working with Cloud Security Alliance. उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा. So that this Cloud Security Alliance has a guidance which is very good I would say starting point, because it covers the breadth of the subject knowledge. So I took that as curriculum. And then another interesting thing about that was that this CSA has a certification program as well. So my actual interest was that I will train my students to learn everything that they need to get this certification done. But of course, then what certification they did, I will share that in a moment. So in the course, it was normal course actually, but then I shaped up my course assignments with some practical work. तो इसमें क्योंकि थियोरी का कोर्स था, it becomes boring जब आप थियोरी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और आज भी उसकी चंद डोमेन्स में डिस्कस करूंगा. So I wanted to make it more interesting, और स्टूडेंट्स भी हमारे जो ग्रेजुएट अंडरग्रेड स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं, they are very good in implementations and they want more projects. तो उसमें एक चीज मैंने उनको कहा, I gave them opportunity to build up their own private storage. Nextcloud का अगर आपने नाम सुना हो, it's an open source project like Dropbox. Dropbox हम बहुत से लोग यूज करते हैं, Google Drive यूज कर रहे होते हैं. So अगर आपने अपनी प्राइवेट होस्टिंग करनी हो जिसमें आप खुद मैनेज कर रहे हो, तो you can set up Nextcloud. And this was Nextcloud that एक छोटी सी assignment थी, but it was they found it very interesting और enjoy किया उन्होंने. Then I came across this IBM Cloud thing. तो इसका जब मुझे हाशिम ने बताया, तो I shared with the students, और मैंने उनको एक असाइनमेंट दी कि आप इस पे अकाउंट बनाएं, आप इसको एक्सप्लोर करें. Actually, I found it very interesting as well. इसके डैशबोर्ड में it has so many things कि उनको एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है at times. So I got a overview from Hashim, and then I shared the same with the students. और around 100 students थे, और सारे students ने उस पे अकाउंट बनाया, they explored it, और उनकी जो feedback थी, काफी students ने उसको they thought that it would be useful for their final year projects. Chand graduate students be involved हुए, they were very much interested to use the for example tools like machine learning tools, or some other IoT Watson platform for their projects, research projects as well. So of course what kind of access they will have, इसके ऊपर मेरी बात चलती रहती है. तो when somebody is into it, when they will request, I will forward that request to the IBM Cloud Pakistan people, और वो देखती हैं उसके ऊपर क्या बनता है. But that was actually my concern कि वो उनको benefit भी मिल रहा हो. Then again इसी कोर्स के अंदर during this course there was a competition announced which was built on Pakistan competition by AWS. Amazon ने announce किया था, और उसको sponsor कर रही थी 2-3 industrial organizations. तो वहाँ पे I encouraged my students to participate. उसमें participate किया, and they got in touch with the industry in this way, और उससे भी उनको फायदा हुआ. They became first runners up all over Pakistan, और उनको internship भी मिली, और बाकियों को encouragement मिली. सबसे बड़ी बात ये थी. So all this activity was कि when you get some success stories shared with, जब students आपस में एक दूसरे से share करते हैं, तो first time था ये. So it was the response was like 10% जो इंडस्ट्री के साथ जिनका लिंक बना, लेकिन आई एम श्योर कि ये बाद में इंक्रीज होता जाएगा. और इसमें एक मैंने चीज ऐड करनी मैं भूल गया, जो which was more important, कि सर्टिफिकेशन जो थी, एक्चुअली आई वांटेड माय स्टूडेंट्स टू डू सर्टिफिकेशन जिसकी मैं करिकुलम को फॉलो कर रहा था, which is called CCSK, Certification of Cloud Security Knowledge. It's a very it's tough certification, but it's broader, और काफी चूंकि कोर्स का पार्ट था, तो ऑब्जेक्टिव यही था कि कोर्स के एंड पे बच्चे वो करेंगे. बट द मेन हर्डल वाज कि
इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, सो इट कॉस्ट अराउंड 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़, तो मे बी डॉलर के साथ ये ज़्यादा हो गया होगा अभी मज़ीद, तो स्टूडेंट्स दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं स्टूडेंट्स को फोर्स भी नहीं करना चाहता था इन एनी असाइनमेंट के वो सर्टिफिकेशन करें। इट वुड लुक लाइक कि जिस तरह मैं उनको मज़ीद पैसे स्पेंड करने को कह रहा हूँ, एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। तो मैंने एक उनके लिए जो फाइनल जो हमारा कोर्स का प्रोजेक्ट होता है, आई सेड कि आप कोर्स प्रोजेक्ट करना चाहें तो अपना प्रोजेक्ट करें, और उसमें क्लाउड का इम्पैक्ट कोई एलिमेंट हो, चूंकि सीनियर स्टूडेंट्स थे। सो वन थिंग आई शेयर्ड वाज कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अगर क्लाउड नहीं है तो क्लाउड को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल IBM क्लाउड आप यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सो स्टार्ट यूजिंग दैट IBM क्लाउड सर्विसेज, एंड your final year project would become cloud enabled. So that was the idea कि एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा मैंने उन्हें कहा कि जो सर्टिफिकेशन करना चाहें किसी भी की सर्टिफिकेशन करके आ जाएं, but then if you pass the certification you will get full marks. So that was a very good incentive for those students, जो especially जो लायक बच्चे होते हैं वो they always go for the best. तो उसमें सर्टिफिकेशन हमारे पास गूगल की थी, अमेज़न की थी, माइक्रोसॉफ्ट की थी, जो उनका प्लेटफॉर्म, और IBM की भी थी। IBM की थोड़ा सा मुझे लेट पता चला, अदरवाइज और थोड़ी सी शायद टफ है, एक कोर्स के अंदर कवर नहीं हो रही थी, टूल स्पेसिफिक थी, इस वजह से ऐसा उसके ऊपर लेट था तो स्टूडेंट ने नहीं आए। लेकिन इसकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो फंडामेंटल्स की सर्टिफिकेशन थी, ऑल्दो इट वाज वेरी बेसिक, बट स्टिल जो इसकी कॉस्ट थी वो कोविड की वजह से काफ़ी कम भी हुई थी, तो स्टूडेंट्स वेंट फॉर इट, और इट वाज वेरी चीप। जब उन्होंने लॉगिन जब अपना अकाउंट क्रिएट किया यूजिंग फास्ट, तो दैट वाज चीपर एज वेल, तो काफ़ी सस्ता उनको पड़ा, और दे डिड इट, और उसमें तकरीबन 10 या 12 आई थिंक स्टूडेंट्स थे हु गॉट सर्टिफिकेशन। बाकियों ने ट्राई, सब ने नहीं की। अराउंड 16-17 ने ट्राई किया था, 5-6 क्लियर नहीं कर सके। उनको मैंने कुछ कंपनसेट किया फिर उस प्रोजेक्ट मार्क्स में, लेकिन स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक अच्छी थी, एंड आई होप कि उनको जिन्होंने कर ली दे विल हैव सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो दिस वाज my sharing of what I did, जो जिसकी सर अर्शद ने भी बात की थी। So with this, I would also like to use my some time. I think मैंने बहुत ज़्यादा तो इसमें आज कवर नहीं करना, लेकिन just an introduction, और then if we see it interesting, I will continue doing these domain introduction in future meetings. आज हम थोड़ा सा 4-5 domains को overview देख लेते हैं. So that if we have students in the session, they can get what this cloud is and what is cloud security, why we want to have cloud security, why it is important. So the first thing is why cloud? So cloud computing या cloud के ऊपर everybody knows about it. It's become a known term now. It's not a new science nowadays. क्लाउड की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, फिर लेकिन थोड़ा सा ये पता है हमें कि क्लाउड, यस देयर वी हैव क्लाउड, बट वी डू नॉट नो what technology we are using and that is cloud based or not. ये हमें नहीं पता होता, लेकिन यूजुअली मोस्टली तकरीबन आजकल की मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी सी दे आर क्लाउड बेस्ड। आप ईमेल से लेके स्टोरेज से लेके आप ले लेंगे, आप Microsoft Office देख लें, that has become cloud enabled as well. So everything is going into the cloud. और ये जो अगर आप इस स्लाइड में देखें तो इसकी जो रेलेवेंस है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्लाउड इज, ये इंडस्ट्री क्या समझती है, ये उसका एक छोटा सा सर्वे है। तो इफ यू सी के जो हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, मीडियम बिजनेसेस हैं, 98% of those businesses think that it is very much important for them. It's a technology which they should have. और बाकी अगर आप देखें स्मॉल एंटरप्राइजेज को देखें, उसमें भी काफ़ी हाई नंबर है। सो और इसी तरह जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस हैं, they even think 50% of those businesses think that they should have this technology. So ये तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी, why we need to have cloud. So इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, इंडस्ट्री would be using it, आज नहीं कर रही तो कल जरूर करेगी।
Then the second question is why we need security. So इसमें अगर देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो सिक्योरिटी कंसर्न है that becomes very high. इसमें अगर इस फिगर को देखें तो it's not about security, it's about complexity. So इसका मतलब ये हुआ कि industry wants people, human resources who know about cloud computing because it is a complex technology as they think, because आप देखें इसको it's on the top in terms of complexity, and if it is complex it will also stop them to adopt this, because then if it is a IT technology and it is complex, they would never go into it unless they are sure that it is that they are secure. Cyberspace में उनकी security भी है, so at least इतना knowledge industry के पास आज है. So that's why we need to have security in cloud computing. So this makes up a very good use case for cloud security knowledge जो हमारे पास होना चाहिए. अब cloud computing है क्या? It's a nice thing. Some cloud को अगर हम देखें तो it looks like अगर non security का बंदा है तो वो कहेगा it's something that we can love. It's very cheap. आपको free में cloud की storage मिल रही है. And many other things आपको मिल रही होती हैं. So it looks like it's a beautiful thing, but and that's because of its few characteristics which are defined in its definition, जो NIST definition दी हुई है, जिसमें rapid elasticity, which means that you can upscale and downscale the resources that you procure from cloud, and you pay according to those resources. Then you can use on-demand self-service. You don't have to do tender और उसके बाद wait करें और फिर वो open करें और फिर you buy something, and if it is a wrong buy, then you lose all the money. So it's not the same in the cloud. Cloud के अंदर आप अगर कोई चीज purchase करते हैं as per your demand need आप purchase करें, or then you can release that when you do not need it. Then it has broad network access, which means that you can access it from anywhere. आप different devices के साथ use कर सकते हैं, different places पे use कर सकते हैं. The only thing that you need to have is your good internet connection. So ये इसकी characteristics की वजह से it looks really good. But there is a famous saying that for every truth has two sides. So it is as well to look at both before we commit ourselves to either. So that means that if we go for cloud computing, and we think that it is very good, we need to see the other side of the picture, which we security people actually see. And if with this security umbrella, these same clouds, they become very scary. क्लाउड बर्स्ट के बारे में तो हम आजकल सुनते ही आ रहे हैं. So it can become scary, and why that becomes scary? Because of all those lightning and all those problems. So again, this is a list of 12 treacherous dangers that Cloud Security Alliance has identified. इनकी different publications हैं, और तो उसमें अगर आप देखें तो data breaches is at the top. फिर insufficient security for identity and access management, insecure APIs, vulnerabilities in the cloud, account hijacking, malicious insiders in the cloud, persistent threats जो हैं वो cloud के अंदर, data loss का आपको काफी ज़्यादा खदशा होता है, insufficient due diligence because people do not know what to do in the cloud, abuse of cloud services for wrong reasons, denial of service, and shared technology issues जो हैं इसमें. These are main 12 things. This is a separate list. ये एक separate document है जिसके अंदर जो industry ने या researchers ने या practitioners ने identify किए हुए हैं कि these are the major problems in cloud computing. But the story does not stop here. The list of problems goes on. और उसी के लिए ये जो cloud security का course जिस guidance पे मैंने design किया था, it is a guidance which identifies 14 domains जिनके बारे में अभी मैं बात करने जाऊँगा. So before going into talking about cloud security, I wanted to map what security is and how this guidance or this cloud security guidance maps to
the security aspects. So अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें मैं briefly इसको quickly go through करूँगा कि the main thing that we want to protect is the data assets. Data हमारा assets होता है IT systems के अंदर, और इसके around हमारी सारी computer science चल रही है. So with these data, which is an asset which we want to protect, इसको secure करना चाहते हैं. It can have weaknesses, vulnerabilities. And if the value of asset is high, then this vulnerability will create threats. So threat only सिर्फ तब होगा जब value of asset high होगी और उसमें vulnerability भी होगी. So that makes up an equation that it creates lots of risks. अब वो risk security के कौन से हो सकते हैं? There is a long list of risks. अब उसको अगर if there is a risk of some attacker to exploit those vulnerabilities, that means that it is very likely that an incident will happen. और ये incident होगा तो then what we can do, the business process could be hampered. वो उसकी continuity hamper हो सकती है, stop हो सकती है, और उसकी incident की जो हमारा security का response होगा, we will have some response. अगर इसकी दूसरी तरफ आए तो इन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए we have two pronged strategy. एक ये है कि हमारा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो हम क्रिएट करें, इन रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उन रिस्क को देन मैनेज करें. मैनेज करने की फिर रिस्क मैनेजमेंट की आगे जो स्ट्रेटजीज हैं, आप रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, आप उसको कम करते हैं, मिटिगेट करते हैं. सो वी कैन डू समथिंग हियर to reduce that risk. या हम उसको accept कर लेते हैं कि okay, we know that there is a risk, but we do not want to spend money on that, because risk management में the important thing is that we want the policy, the governance, the management would like to spend money on only those risks which are very critical. So हर risk को अगर आप reduce करने की कोशिश करेंगे then we will not be a profitable business. So उसको control करने के लिए हमारे पास यहाँ पे quick controls होंगे, which would be like not here but here. We will put some controls. अब ये controls हमारे अपने defined controls भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि there are some external obligations जिनकी वजह से हमें ये controls implement करना must हो. वो external obligations क्या हो सकती हैं? For example, if we are in Europe and we are dealing with the personal data, then the GDPR would require that we need to implement some security controls, some policies. और हमारी policies भी accordingly उस law और regulation के मुताबिक हम उसको frame करके उन controls को implement करेंगे. So standards हैं, laws and regulations हैं, उनकी basis पे हम अपनी policies को improve कर रहे होते हैं, controls define कर रहे होते हैं. And when we improve those controls, or IT systems become secure और risk कम हो जाता है. So it's kind of in a cycle. Then the other thing is कि एक और इसकी ये अगर डायमेंशन देखें तो this is something कि अगर कोई लॉ, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड या गाइडेंस है, फॉर एग्जांपल यूएस में हेल्थ के लिए एक रेगुलेशन है which is called HIPAA, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन privacy protection, or not privacy protection act है कुछ. So if that HIPAA is, if you are a clinic or a hospital or a doctor, तो आपको HIPAA compliant होना चाहिए. So it means that आप ये वाले standards को ये standards जो control define कर रहे हैं, those should be there. So that means कि आप if you claim that we are implementing all the requirements, all the controls which are stated in the HIPAA guidance, HIPAA requirement, then there must be someone testing that. आप अपना self test कर रहे हैं, उसको आप जिसको हम कहते हैं audit and attestation या compliance की हम बात करें अगर, so that means there should be a third party which is trustworthy, trusted, third party जो test करेगा कि आप ये वाली जो स्टैंडर्ड है उसके कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट आपने किया हुआ है कि नहीं, टेस्ट करेगा, उसका एविडेंस लेके सर्टिफाई करेगा दैट यस यू आर HIPAA कंप्लायंट. सो इस तरह की ये डायमेंशन जो है ये कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन की आ गई. सो
ये हमारी सारी सिक्योरिटी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है. सो दैट मीन्स दैट जब हम क्लाउड सिक्योरिटी की बात करेंगे, वी नीड टू थिंक द सेम काइंड ऑफ डायमेंशन. सारी बातों को हमने कंसिडर करना है, और जो क्लाउड सिक्योरिटी की गाइडेंस है उसने इन सबको कवर किया हुआ है, and those are covered in different domains. For example, रिस्क को एक डोमेन में कवर किया हुआ है, पॉलिसीज को एक डोमेन में कवर किया हुआ है, कंप्लायंस को एक डोमेन में कवर किया हुआ है, लीगल ऑब्लिगेशंस को एक डोमेन में किया हुआ है, इंफॉर्मेशन गवर्नेंस. सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कवर्ड इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ दैट गाइडेंस. सो इस तरह से करके ये कंटेंट इसका क्लाउड सिक्योरिटी का जो आप कह लें कि जो क्लाउड के अंदर अगर हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो वी नीड टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स. So what we need, so Cloud Security Alliance के ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा सा. What is Cloud Security Alliance? It's a world leading organization, and it's a non-profit organization. It deals with defining and raising awareness of best practices to help ensure a secure cloud computing environment. So it's a very good place to be part of. इसका अगर आप इंडस्ट्री है तो भी इसका पार्ट बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एकेडमिशियंस हैं उनके लिए भी, प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी, सो रिसर्चर्स के लिए भी, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क. सो यहाँ पे किसी तरह से इनके साथ लिंकेजेस, इफ यू हैपन टू वर्क विद क्लाउड, you should be part of CSA somehow. Back in 2015, I think at that time the Cloud Security Alliance का पाकिस्तान चैप्टर हम चंद दोस्तों ने जो लाइक माइंडेड थे, जो इसमें काम करते थे, वी स्टार्टेड. नस्ट में भी डॉक्टर शहजाद, आई थिंक डॉक्टर अर्शद शायद जानते हो, he was part of it. I was part of it from ComSets. At that time I was working there. तो CSA का पाकिस्तान चैप्टर हमने स्टार्ट किया. It worked well in the beginning. कुछ हमने सेमिनार्स कराए हम, but then लोग इधर उधर चले गए, तो फिर it stopped working. हम दोबारा इसको रिवाइव करने का बहरहाल आइडिया ज़हन में रखते हैं, because the good thing, if we have that चैप्टर इन पाकिस्तान, इट वुड बी कि हम यूनिवर्सिटीज़ को कोई, जैसे अब इस कोर्स में मैं अगर बच्चों को सर्टिफिकेशन कराना चाहता था, वी कुड टॉक अबाउट ओके हम बेस्ट स्टूडेंट्स को कोई सर्टिफिकेशन कूपन्स दे दें. तो ये इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी इनकी सर्टिफिकेशन वेल एक्सेप्टेड है, तो वी शुड बी पार्ट ऑफ इट. सो वी शुड नो अबाउट दिस, बिकॉज इसके साथ जो लोग अटैच्ड हैं, प्रैक्टिशनर्स, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट्स भी हैं, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल मेंबर्स भी हैं. Their activities are research, education, certification, events, and products. They have benefits for customers because they learn what cloud computing is and how they can secure themselves. Governments के लिए, policy making के लिए है, entrepreneurs के लिए, assurance industry के लिए, because they have audit and assurance as well. So it provides a forum through which diverse parties can work together to create and maintain a trusted cloud ecosystem. So it's very good. Now I take about 10 minutes, if I have, to discuss few domains of cloud security guidance. इसके अंदर जो 14 domains हैं basically, आज में I would like to just give one slide of each domain. 4-5 domains को हम discuss करते हैं, but the way it is structured, it has 14 domains. उनमें जो first domain है, it talks about introduction, और introduction में what is cloud computing, फिर उसकी definitions और इसके जो knowledge base है वो build किया जा रहा है without talking anything about security. Domain 2 to 6 जो ये 5 domains हैं, they talk about governance. Governance means कि how you define policies, how you implement those policies, how those policies are affected when you go into the cloud. So इसमें ये बड़ा एक ज़बरदस्त एक knowledge है. For example, if we have if there is a company, industry है कोई, and they think that they want to use some cloud service, what are the obligations, external and internal, उनको understand करने के लिए ये एक बड़ी comprehensive document है. इसको अगर आप, मतलब इसमें चीज की डेप्थ तो नहीं बताई हुई, लेकिन ब्रेथ में जरूर बताया हुआ है.
कोई एस्पेक्ट इसमें मिस नहीं हुआ। तो इट्स वेरी गुड कि इसको एक दफा गो थ्रू कर लिया जाए, ये इसका पता हो। एंड देन कम्स द सेकंड सेट ऑफ डोमेन्स व्हिच आर ऑपरेशन डोमेन्स, के क्लाउड कंप्यूटिंग में फॉर एग्जांपल अगर हम सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से सिक्योरिटी अप्लाई होगी, की एक्सचेंज की मैनेजमेंट कैसे हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजीज है, वर्चुअलाइजेशन है वो कैसे काम करेगी, कंटेनर्स का क्लाउड के अंदर क्या इम्पैक्ट है। सो all those things which are the operational aspects of cloud computing, they are discussed in domain 7 to 14। और इस गाइडेंस के अंदर एक और जो चीज है, हर डोमेन में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन है हर चीज का, और फिर देन the second part tells about how that is affected when you go into the cloud। So अगर एक किसी को फॉर एग्जांपल, ओके लेट मी स्टार्ट विद द डोमेन्स, बट अगर एक डोमेन का नहीं पता कि ओके रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज है, इट्स अ गुड गाइड टू गेट बेसिक डेफिनेशंस ऑफ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज। अदरवाइज तो रिस्क मैनेजमेंट में पूरा कोर्स किया जा सकता है, पूरी डोमेन है सिक्योरिटी की, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके देन इट टेल्स अबाउट what is affected when we go into the cloud, how risk management should be done when we have a system where we have our own infrastructure and the cloud, and some of our IT systems are in the cloud as well। तो आप risk management फिर कैसे करेंगे, आपके हाथ में तो control नहीं है, it is the cloud provider who is doing everything। So whether you trust that cloud provider, you will have some contracts, कौन से mechanisms हैं जिनसे आप ये रिस्क मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें इसको वी कॉल इट अ शेयर्ड, वी हैव अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल वेयर कस्टमर हैज सम रिस्पांसिबिलिटीज एंड प्रोवाइडर हैज सम रिस्पांसिबिलिटीज, और वो किस तरह से मैनेज करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट करनी है, वो इस तरह की बातें इस डॉक्यूमेंट में डिस्कस हुई हैं। So it's in the first domain, it talks about the basic definition of cloud computing, or जो basic concepts हैं, if I just name them, explain करने का time नहीं है। So these are the 3, 4, 5 basic characteristics that cloud computing has। और ये this is a well known definition। Definitions तो और भी cloud computing की हैं, लेकिन NIST की definition is widely known and well adopted। So इनके बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि रिसोर्स पूलिंग है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, देन ये रैपिड इलास्टिसिटी है। ये इसकी व्हाट डज दैट मीन, वो इसकी डेफिनेशन के अंदर एवरीथिंग इज डिफाइंड। देन वी हैव क्लाउड सर्विस मॉडल्स। व्हाट दैट सर्विस मॉडल इज कि हाउ क्लाउड प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज, किस लेवल पे प्रोवाइड कर रही है। सो वी हैव a reference service model which is called SPI model, which is software as a service। The cloud provider can provide platform as a service, and cloud provider can provide infrastructure as a service। So 3 levels हैं जो कि cloud computing के basic definitions को cover करते हैं। So इनकी एक एग्जांपल if I would like to share one example of each। Software as a service means कि अगर आप Google Docs को यूज करें, तो if you buy a new computer and you have not installed anything on your computer, तो आप क्या करेंगे, आप अपना Google के अकाउंट में लॉगिन करें और लिखें docs.google.com या sheets.google.com। सो ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं दे आर प्रोवाइडेड, इनको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको गूगल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, और इंटरफेस आपको जो दिया हुआ है वो वेब ब्राउजर के थ्रू आप उसको यूज कर रहे हैं। इसके और भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जैसे आप ड्रॉपबॉक्स यूज करते हैं तो ड्रॉपबॉक्स आपको स्टोरेज सर्विस दे रहे हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू दे रहे हैं, और आपकी ड्रॉपबॉक्स एप्लीकेशन या आप वेब के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दूसरे एक्सट्रीम पे मैं आ जाता हूँ। अभी ये सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने अपने कंप्यूटर पे कुछ इंस्टॉल नहीं किया, किसी एक इंटरफेस के थ्रू विच इज ब्राउजर इन दिस केस, उसके थ्रू आपने सर्विस को एक्सेस किया, एंड यू कुड just write your applications, you can write your documents, save those documents। of course save करने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए, और स्टोरेज भी उसके साथ लिमिट जो प्रोवाइडेड है थोड़ी बहुत। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस पे अगर आप आ जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में it's about, it's like we can think of, it's not like the physical thing that we get, but it is access to that physical thing। आप उसको समझ सकते हैं, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है वर्चुअल मशीन।
many people have worked with virtual machines. So infrastructure as a service में हम virtual machine को तो कह सकते हैं, storage भी हो सकती है बार उसमें, लेकिन virtual machine क्या होती है, आप request करते हैं virtual box अगर अपनी home environment में भी कर रहे हो, तो virtual machine क्या में हम क्या करते हैं, we request कि हमें एक computing power चाहिए, machine चाहिए which has Core i7 and it has 16 GB of RAM, it has this much of cache और नेटवर्किंग की इस तरह की इसकी फैसिलिटीज हों. तो ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन यूजिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर you say that okay, I want to install Linux or I want to install Windows, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होके VM इमेज आपका बंद क्रिएट हो जाता है. So this is infrastructure as a service. इनके मिडल में प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, जिसमें we don't have like this कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने खुद डालना है और एवरीथिंग यू put in that, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. इट्स अ प्लेटफॉर्म लाइक काइंड ऑफ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अगर आपने गूगल कोलैब फॉर एग्जांपल यूज की हो, तो इट्स के इट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म कि अगर मेरे कंप्यूटर पे कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं भी है, तो एक गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए मैं अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ. तो सॉफ्टवेयर सर्विस में एप्लीकेशंस क्रिएट नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई इस तरह की चीज क्रिएट हो रही होती है. प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आप प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर रही होती हैं, एंड ये आपके सर्विस लेवल्स होगी. एंड दिस इज रेफरेंस मॉडल. इट डजंट मीन कि आपके जो रियल सर्विसेज जो गूगल जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर कर रहे हैं वो कहीं फिट होंगी इन्हीं तीन मॉडल्स में. इट कुड बी इन बिटवीन, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, तो वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, बट इट्स अ रेफरेंस मॉडल. Then we have 3 deployment models. Main बल्कि 2 को हम डिस्कस करते हैं, बाकियों को हम they are just combination. So public cloud is something जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बंदा क्लाउड सर्विस को यूज कर सकता है. एंड प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ रिसोर्सेज रिजर्व कर दी गई हैं, एंड नोबडी इज गोइंग टू शेयर दोज रिसोर्सेज, अदरवाइज शेयर हो रही होती है पब्लिक क्लाउड में. तो प्राइवेट क्लाउड जरूरी नहीं है कि आपके कैंपस के अंदर ही हो, इट कुड बी मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर ही यूज कर सकते हैं. वन एग्जांपल ऑफ दिस प्राइवेट क्लाउड कुड बी कि नादरा का अगर हम चाहें सपोज के वी वांट के नादरा का सिस्टम क्लाउड के ऊपर चला जाए, सो वी वुड नेवर लाइक कि हमारा नादरा का सिस्टम यूएस के किसी सर्वर पे जाके या किसी इंडिया के सर्वर पे जाके एंड अप हो रहा हो. तो व्हाट वी वुड डू इज हम उसको लोकली इंफ्रास्ट्रक्चर सारा लोकल होगा, डेटा सेंटर हमारा लोकल होगा, बट इट कुड बी कि आप Amazon से कहें बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स कि आप इसको मैनेज कर लें. सो ऑफ कोर्स विद सम कॉन्ट्रैक्ट्स कि आप उसको डेटा को मूव नहीं कर सकते या एक्सेस उसकी बाहर जाने की ना हो, बट इट वुड बी मैनेज्ड बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. कितना टाइम है मेरे पास? हाउ मच टाइम आई शुड टेक? Dr. I think this is really useful. So you can have another 10 minutes. Okay, good. So अगर ये जो मैंने अभी आपको और हाइब्रिड में ये है कि it could happen that we decide जो बाद में जो डिफरेंट डोमेन्स में हम देखेंगे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. we decide कि हम जो क्रिटिकल डेटा है वो हम लोकली होस्ट करें, और जो अदरवाइज डेटा दैट कुड गो इनटू पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड में भी सिक्योर होता है. we don't say that public cloud है तो everybody can access it. Public cloud होता सिक्योर है, but still we have some it could be some legal requirements कि पाकिस्तान का डेटा किसी और मुल्क के अंदर रिजाइड ना कर रहा हो. सो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. इसलिए पब्लिक क्लाउड, या क्योंकि वो शेयर प्लेटफॉर्म भी शेयर हो रहा होता है, एक ही फिजिकल मशीन के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं, वो आगे एक डायग्राम आएगी उसमें नजर आ जाएगा. सो हाइब्रिड में हम ये करते हैं कि कुछ जो ज्यादा सेंसिटिव चीजें हैं वी कीप देम विद अस, और बाकी चीजें जो हैं वो हम पब्लिक क्लाउड के अंदर ले जाते हैं. और कम्युनिटी क्लाउड कुड बी जैसे HEC ने कोई एक कम्युनिटी क्लाउड बना लिया सपोज फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. तो यूनिवर्सिटीज का एक कम्युनिटी है, उनके लिए क्लाउड डेवलप किया हुआ है, और उसकी सर्विसेज फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेजरिज्म चेक करना है तो उसके लिए जो सर्विस दे रही है किसी से ली हुई है, ऑफ कोर्स वो सर्विस जो है वो उस कम्युनिटी क्लाउड में प्रोवाइड की जा रही है. सो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड.
अगर कंट्रोल की हम बात करें तो ट्रेडिशनल हमारा ये सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो हार्डवेयर है, नेटवर्क है, स्टोरेज है, वर्चुअलाइजेशन अगर है, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय आवरसेल्व्स। हम एप्लीकेशंस खुद डाल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डाल रहे हैं, मशीन खुद खरीद के ला रहे हैं, उसको कॉन्फ़िगर खुद कर रहे हैं, उसकी नेटवर्किंग खुद कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रेडिशनल सिस्टम। लेकिन जो अभी क्लाउड के 3 मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे उसमें अगर हम सॉफ्टवेयर सर्विस से स्टार्ट करें तो उसमें अगर आप देखें, ग्रे मींस कि व्हाट क्लाउड सर्विस यूजर क्या कर रहा है, क्या उसके पास उसका कंट्रोल किस चीज पे है। तो यहाँ पे देखें, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज डन बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सो सर्विस यूजर जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो इट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर सारी आएगी, इसकी सिक्योरिटी की, इसकी मैनेजमेंट की, एवरीथिंग। अब एज अ कस्टमर आप इससे आप रिलैक्स तो हो सकते हैं कि ओके आई डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स, बट यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर कि if I'm using Google Docs, so everything is fine. You will have to have some contracts, some agreements के मेरे डेटा की प्रोटेक्शन कैसे होगी। सो दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। आप कैसे उसको मेक श्योर करेंगे कि आपके सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स एज अ क्लाउड यूजर वो फुलफिल कर रहा है क्लाउड प्रोवाइडर, और उसको आप डॉक्यूमेंट भी करें, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में अगर आप देखें तो इसमें इतनी लेयर्स जो हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर कंट्रोल कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो है यानी कि डेटा है या एप्लीकेशंस आप जो क्रिएट कर रहे हैं, दे आर इन योर कंट्रोल। और आईएएस में जैसे है देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर जितनी लेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि आपने रिक्वेस्ट कर ली कि मुझे एक मशीन चाहिए 16 GB की और कोर i7 चाहिए, उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए। सो ये सारी चीजें पूल करके क्लाउड प्रोवाइडर ने रखी हुई होंगी। दे विल गिव यू, they will deliver this resource infrastructure as a service to you। और साथ आप ये कहेंगे अच्छा आपने अब मुझे मशीन दे दी, अब ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है, इसको आप इस पे इंस्टॉल भी कर दें। आप उससे करवाएं या खुद करना चाहें, जो इजी मॉडल है वो क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डालना है, एंटीवायरस आपने डालना है, मिडलवेयर आपने डालनी है, उसकी वीकनेसेस, उसकी वल्नरेबिलिटी, एवरीथिंग यू विल हैव टू make sure that everything is provided। So इसमें responsibility definitely cloud service user की भी आ जाती है। So this is a basic introduction जो कि पहले डोमेन में डिस्कस किया गया। This is an extension to the previous slide। इसमें आप देखें ये एक यूजर है जिसकी एक मशीन, ये यूजर की एक मशीन है। So it's not a machine here now, ये क्लाउड के अंदर होस्टेड है। So ये होता किस तरह से है कि एक डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर में बहुत सारे मशीनें पड़ी हैं, पावरफुल मशीनें पड़ी हैं, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर की हुई है। तो ये एक डेटा सेंटर जो है इसकी फिजिकल रिसोर्सेज को पूल किया जाता है। अब पूलिंग करना क्या है? पूलिंग इज एक्चुअली a technique or a mechanism where you create a pool of resources। यानी कि आपके पास एक फिजिकल मशीन है, वो उसकी स्टोरेज जो है वो 100 टेराबाइट्स है सपोज। अब वो 100 टेराबाइट्स स्टोरेज जो है उसको आप किस तरह से डिफरेंट यूजर्स को देंगे, सो दैट इज कॉल्ड पूलिंग। वो आप स्टोरेज पूल कर रहे हैं। इसी तरह आपकी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ आपके पास 100 या 1 टेराबाइट की आपके पास बैंडविड्थ है। हर यूजर को उसके मुताबिक आपने किस तरह से उसके पार्ट्स बना के डिलीवर करनी है। सो दैट दोज टेक्नोलॉजीज वो आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू करते हैं, वो कंटेनर्स के थ्रू की जाती है, वो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के थ्रू की जाती है, एसडीएन आजकल यूज किया जा रहा है, एसडीएन के थ्रू की जाती है। सो इस तरह इन टेक्निक्स को, इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए रिसोर्सेज को पूल किया जाता है और फिर यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसको दे दिया जाता है। सो इट कैन हैपन फॉर एग्जांपल इन इट्स एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड कि ये एक फिजिकल मशीन है, ये यहाँ से इसका मैं व्यू दे रहा हूँ। एक फिजिकल मशीन है विच इज अ हार्डवेयर, जिसको क्लाउड एडमिन ने उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया हुआ है, और उस हाइपरवाइजर ने वर्चुअलाइज करके उस मशीन को इस काबिल बना दिया है कि डिफरेंट यूजर्स दे कैन रन देयर काइंड ऑफ मशीन्स। उनको तो यही नजर आएगा कि जैसे उनका कंप्यूटर है, लेकिन इट वुड बी अ वर्चुअल मशीन, वो यहाँ पे रन हो रही होगी। सो यूजर 1 A एंड यूजर B वुड बी
sharing the same platform. This is the example of public cloud. ये आपका क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सपोर्ट कर रहा होता है. Then the second domain जो है, it talks about governance and enterprise risk management. इसमें governance क्या है? I will stop with this slide only. Third पे मैं नहीं जाऊँगा. So governance क्या है? I should not this one. Okay. Governance में हम कहते हैं कि जो गवर्निंग बॉडी है, दे मेक द पॉलिसीज. सो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं. द टॉप लेवल इज गवर्नेंस, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे मेक पॉलिसीज. और पॉलिसीज किस बेसिस पे बना रहे हैं? पॉलिसीज इस तरह से बना रहे हैं कि हम हाउ वी कैन बी अ प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी कंपनी है. अब उसकी पॉलिसीज में सिक्योरिटी ने कितनी इंपॉर्टेंस है, दैट डिपेंड्स. जो मैंने आपको प्रीवियस इमेज दिखाया था, जिसमें एसेट की क्रिटिकलिटी या उसके आपका रिस्क जो है, किस रिस्क को आपने रिड्यूस करना है, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने क्या पॉलिसी बनानी है, किस चीज़ के ऊपर आपने सिक्योरिटी लगानी है, आपने सीसो हायर करना है कि नहीं करना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि एक्सपर्ट होगा सिक्योरिटी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसने कौन कौन से कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है, इंक्रिप्शन की कौन सी टेक्निक्स हमने लगानी है. ये सारी जो पॉलिसीज हैं, ये गवर्नेंस लेवल पे डिसाइड हो रही होती हैं कि हमने किन किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है. सो एंड दे ऑल्सो लुक अपॉन कि हमारे पास ऑब्लिगेशंस हमारी क्या हैं. सो ये तो इंटरनल ऑब्लिगेशंस होगी. एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? हम अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ कंपनी इज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, दे शुड हैव they should follow the legal things, जो पाकिस्तानी लॉ जिसको इन्फोर्स करते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जो साइबर लॉ जिसे हम कहते हैं, अगर वो ये कहता है कि आपने डेटा को रिटेन करना है फॉर 6 months, जो हमारा पीटी है वो ये रिक्वायर कर रहा है हमारे नेटवर्क ऑपरेटर्स के से. सो अगर वो नेटवर्क ऑपरेटर क्लाउड बेस्ड है एंड दे से दैट ओके, हमने तो डेटा क्लाउड पे भेजा था और क्लाउड प्रोवाइडर ये उसकी प्रिजर्वेशन नहीं, उसको जो प्रिजर्व करना था उसको नहीं कर रहा था, या रिटेंशन नहीं कर रहा था डेटा की, तो यू आर नॉट एब्सॉल्व्ड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ऑपरेटर. तो क्लाउड में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लीगल ऑब्लिगेशंस को किसी तरह फॉरगो कर दें. सो जो हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, गवर्नेंस लेवल पे इन लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उनको हम मीट अभी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम क्लाउड को यूज करेंगे तो क्लाउड प्रोवाइडर इनको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वायलेशन होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर जब हम कहते हैं क्लाउड गवर्नेंस, तो क्लाउड गवर्नेंस मींस नॉर्मल गवर्नेंस तो ये हो रहा था, लेकिन व्हाट वी मीन विद क्लाउड गवर्नेंस इज दैट वी एक्चुअली शिफ्ट आवर गवर्नेंस टू द क्लाउड प्रोवाइडर एज वेल. वहाँ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं. आप क्लाउड को पहले असेस करेंगे कि क्या वो हमारे साथ एग्री भी करता है कि नहीं, फिर हम देखेंगे वो किन लॉज के साथ कंप्लाइंट है, और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट्स में उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करेंगे. एंड देन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. सो अगर आप क्लाउड में नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट यू वुड बी डूइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल. जो भी रिस्क मैनेजमेंट में हम सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, बाकी रिस्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क की हम बात करें, तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट आपने की हुई है कि ओके वी नीड टू हैव VPN at the edge of our network. So ये आप तो कर सकते थे, but if you go into the cloud, आपकी कोई मशीनें क्लाउड के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, how would you make sure that कि वो VPN जो आपने अपने इन हाउस लगाया हुआ था उसी तरह का उधर भी चल रहा हो. So you don't have control on the cloud provider. So अब आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? VPN के लिए कोई अप्लायंस उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सेपरेट रिक्वेस्ट करेंगे, या इट वुड बी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. सो ये सारी जो रिस्क मैनेजमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा. फिर हमारे कौन से रिस्क जो हैं वो हम क्लाउड में जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो है, लेकिन देन वी से दैट ओके वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन these risks because we are getting, हम इसको एक चीज होती है रिस्क को ट्रांसफर कर देना, जिसको इंश्योरेंस भी कहते हैं. सो वी कुड से कि ठीक है, वी गो टू द क्लाउड, जो हमें पैसे बच रहे हैं
and that is a management decision, जो governance decision कि जो बचत हो रही है, तो risk आ भी जाएगा तो उसके लिए हम risk को insure कर लेते हैं, so some insurance company would pay to the client, लेकिन उसमें reputation का क्या loss होगा वो भी एक aspect. So there are many aspects which are discussed in this domain, or it's an interesting thing to know when we talk about governance and enterprise risk management in cloud. So with this I stop here. इसको हम continue कर सकते हैं अगर interest रहा या थोड़ा एक domain को हर session में हम कर सकते हैं. I think that would be a good idea as well. But for now I think we are done with the time, और एक introduction भी दे दिया है. I think that's it from my side today. Thank you, Dr. Mudassir. This is really very useful, and I certainly think, I mean, from my own individual perspective, we should continue this series. You know, the cloud may there's one of the two biggest reasons of limitations in cloud adoption, apart from latency, is security. यार अगर मेरा data cloud पे चला गया तो it's out of my hands. So it is certainly very relevant, and I totally feel we should continue this. But I would love to hear from the audience that we have here. What do you think about this session, about the topic? Sorry, and would you prefer? Would you feel that we have a series, as Dr. Mudassir suggested, that focuses on cloud security? So with this, we can open the floor. Ji sir. Hashim, if I may say something. जी सर. अच्छा, असल में होता ये है कि थ्योरेटिकली तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जस्ट जो इसकी 2015 में मीटिंग हुई थी ना, वो मेरे ऑफिस में नस्ट में हुई थी कि हम क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस की वो एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसमें सादिक भी था, और बल्कि मैं अभी सादिक को पूछ रहा था, वो अभी चाइना जा रहा है इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया. तो उस वक्त से हम ये थ्योरी की तो बातें करते जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी हशमत से रिक्वेस्ट की है कि ही शैल शेयर विद अस कि इसमें हम इंडस्ट्री इंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं. सो हशमत साहब हमारे साथ हैं. हशमत, कैन यू प्लीज शेयर कि हम इंडस्ट्री इंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं. और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टू सी डॉक्टर मुदस्सिर को, द वे ही हैज़ ग्रोन अप. मेरी बहुत अरसे के बाद इससे मुलाकात हुई है. तो हशमत, कैन यू प्लीज शेयर, क्योंकि थ्योरी की बातें करना एक चीज़ है, इंडस्ट्री की इंगेजमेंट दूसरी चीज़ है. जी, तो डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? यस, वी कैन हियर यू. अगर काइंडली आप अपनी स्लाइड्स शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. जी डॉक्टर साहब, I don't have any slides, but that's okay. I think we can keep it very simple and to the point. पहली बात तो ये है कि डॉक्टर असलम, thank you very much for your presentation. I thoroughly enjoyed the content that you presented, and it's so nice to see that there is not only that level of expertise there, but indeed you are imparting that and sharing that with your students. So, you know, we practice this with our, you know, our clients are moving to cloud. There's a lot of reasons to move to the cloud, but just Hashim ne bhi mentioned kiya, security is a major inhibitor, and cloud security jo hai, that is you know, if cloud security is simply, if you take on-prem security and multiply it by 10, then that's what cloud security is. Because जिस तरह आप प्रेजेंटेशन में मेंशन कर रहे थे कि जब अगर आप ईमेल भी यूज कर रहे हैं तो that is in the cloud. And there are a lot of assumptions कि मैं अगर Microsoft की ईमेल यूज कर रहा हूं तो my data is protected or this, you know, and so that's not the case. You know, आप SharePoint में भी डाल रहे हैं, आप email में भी डाल रहे हैं. So there are different facets of that. Anyway, but coming to Dr. Saab's point, Dr. Arshad's point, you know, security, like everything else today, is becoming very focused on industries. So, you know, जो security आपको एक बैंक में चाहिए, उसके अपने parameters हैं. जो security आपको oil और gas में चाहिए, उसके अपने parameters हैं. जो आपको दफ्तर में चाहिए, उसके अपने parameters हैं. So there is a
there's a tremendous requirement and need for people who not only understand the core foundations and the principles of security, but who are indeed also capable of aligning it or mapping it to the industries. जिस तरह डॉक्टर साहब आप डॉक्टर असलम जिस तरह आप मेंशन कर रहे थे कि there are guidelines, there are HIPAA guidelines, health insurance की जो US की Privacy Accountability Act जो है उनका, similarly आप यूरोप में डील करते हैं तो GDPR आ जाता है, और GDPR में आपकी जिम्मेदारी है to protect the data, but most of the data is sitting all over the place. लोग अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड कर रहे हैं, क्लाउड में पड़ी हुई है, आपने अपलोड कर दी कहीं और पे. So industry based security is becoming very important. The other point जिस तरह आपने mention किया डॉक्टर असलम के security को manage करने के लिए, then you have to put controls in place. तो वो जो controls होते हैं, they come from the industries कि आपकी जो like I recently I even read something that even Pakistan's Insurance Council had come up with a specific requirements के जो अगर आप एक insurance company and you're in Pakistan, so you have to follow these guidelines and controls to be compliant and so on and so forth. The point I'm trying to make is that there's a tremendous opportunity for the students, your students, and indeed of the faculty who are involved to build upon the core security foundations on the cloud and apply them to certain industries, and some of the industries that are on top of this list are the banking, financial sector and banking, क्योंकि उनकी सारी like State Bank of Pakistan just most recently said they're starting to, there's a lot of pressure, so they're starting to approve that banks can use the cloud now, to some extent, similarly telecommunications में use हो रही है, public sector में use होती है, so an area that and I'm speaking more from an SPS perspective, because we deal with clients and we need expertise, and we would love to have your students and people who are experts not just in the cloud, which you are preparing them, but indeed who understand the nuances of industries. Banking mein these are the controls and whatever. So there are capabilities in that space, and as your students become good in understanding the core cloud security fundamentals, and if they can build upon that and also start tuning into as it applies to, let's say, financial services. Some of the companies, जिस तरह भी अगर आप IBM को देखें, so IBM has, in collaboration with the Bank of America and some of the other banks and European some communities, and they've created this thing called IBM Cloud for Financial Services. So us cloud for financial services, man, remember that there's nothing unique about a cloud for banking other than the fact that it better have the security controls that are relevant to the banking sector. So there's going to be a lot of demand going forward. ये जो large organizations होती हैं, they have to be sure कि उनके जो applications and they're secure and so on and so forth. So I don't want to drag this conversation on for too long. I know that Hashim, I know you had it for 6:30 and it's already 6:32. But I just wanted to at least leave with that thought that we sitting in the industry certainly have a need for capabilities from faculty and students, because as faculties you are the subject matter expert, and your students are the ones that you're creating. So in the industry we have a need students who can go, when they go to the banking sector, they can talk about these capabilities. So anyway, I think with that I'll stop. I don't want to drag it on too much. But Dr. Arshad, if you would care to please elaborate or Yes, हशमत, मेरे ज़हन में एक आइडिया आ रहा है कि मैं अभी देख रहा था ये IBM क्लाउड फॉर फाइनेंशियल. अगर हम को इस तरीके से करें कि वी मेक सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज, ये जो फास्ट इस्लामाबाद है, फॉर IBM क्लाउड फॉर फाइनेंशियल,
और इसमें हम डॉक्टर मुदस्सर को भी और इसके स्टूडेंट्स को भी हम मज़ीद टेक्निकल रिसोर्सेज भी दें, इनकी ट्रेनिंग भी करवाएं और हम फिर इनको लाइव प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट भी करें. How that could be possible? Can you please share some light on that? Ji, Dr. Saab, I love that idea because if Dr. Aslam or his other he had a team of students or whoever, so we would, you know, there are banks in Pakistan that we are working with in that space who are considering that. So we could indeed immediately put them in touch because the focus is to, you know, to basically help those guys. So yes, absolutely, I think that's a fantastic idea. और इसकी तो is not only कि इसकी demand is in Pakistan, मतलब this is so new कि पाकिस्तान क्या, Middle East क्या, even in the US there is no talent for this kind of expertise. This is so new because these standards are just coming out, and everybody's at the same level. So and God bless COVID, people don't care कि आप इस कहाँ बैठे हुए इस वक्त anymore, you know. So they will consider talent wherever it resides. You know, so I really think it'll open doors for a lot of young men जो कि आपकी who are already fortunate कि आपने उनको cloud security पढ़ा दिए. डॉक्टर मुदस्सर, इसमें आपके क्या कमेंट्स हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर योर यूनिवर्सिटी आल्सो टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज फॉर क्लाउड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल सर्विसेज. Exactly, sir. I'm happy कि आप consider आपने इस तरह से कर रही हैं. The thing is कि financial sector पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा regulated sector है, and we know that they have got systems which are of international grade. Regulated है, systems भी बाहर के use कर रहे हैं. We don't have any मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई indigenous इतने अच्छे IT के systems भी हैं जो हमारे banking sector को चला रहे हों. So when we are using those systems, we can also use the cloud based systems which are not indigenous. So वो तो limitation हम पे है नहीं, लेकिन still our banks would not understand कि they would hesitate to go into cloud. They would not understand कि cloud for financials का क्या मतलब है, इससे क्या benefit हो सकता है और how secure those could be, या उनको कैसे secure ensure किया जा सकता है. Because जिस तरह आपने cloud for financials की बात की, FedRAMP US में FedRAMP के नाम से एक framework है. They also had this opinion कि cloud services हम किस तरह से अपनी government agencies को allow करें कि they could start using cloud services. So they ended up with a framework called FedRAMP जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट एंटिटीज डिफाइन कर ली कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर FedRAMP कंप्लाइंट हो जाएगा तो यूएस की कोई भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन यूज दैट क्लाउड सर्विस. सो इवेंचुअली Amazon ने ये किया, जैसे अब IBM का आप जिक्र कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये चीज उन्होंने की. Amazon ने ये किया कि उन्होंने FedRAMP कंप्लाइंट, जिनको वो गव क्लाउड बोलते हैं, FedRAMP कंप्लाइंट सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी. इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर की एक अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने PCI DSS कंप्लाइंट होना है. अब वो कंप्लाइंट है क्लाउड प्रोवाइडर या नहीं है, कौन उसकी कंप्लायंस चेक कर रहा है, कब चेक कर रहा है, कितने सो ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं. सो वंस द बैंकिंग सेक्टर वुड नो कि यस the provider is ensuring all kinds of requirements, तो वो उसको जा सकते हैं वो इस पे. लेकिन ये बात अंडरस्टैंड करने, ये उनको बताने के लिए we need a platform and we can create that excellence center which can help them, the banking sector, we can help them to realize that this is secure. और अगर सिक्योर नहीं है तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है उनके साथ हम बात कर सकते हैं with that knowledge के what we need in Pakistani context as well. हाँ मुदस्सर, एक बात तो मैं ये आपसे शेयर करूं कि आपने जिस तरीके से कहा कि ये वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आई हैड बीन इंटरेक्टिंग विद दीज बैंक्स के जो IT के वाइस प्रेसिडेंट उनको ये कहते हैं
मोस्टली ना इनके पास एक्सपर्टीज का सीरियस फुकदान होता है, और जो इन्होंने सिस्टम डिप्लॉय किए हैं ना उसकी 10 से 20% फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे होते हैं, बाकी इसी तरह चल रहा होता है। दैट इज वन थिंग। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो एक है, अगर हम ये सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश करते हैं ना, देन वी शैल नॉट लुक एट पाकिस्तान, वी शैल लुक एट द वर्ल्ड। और जिस तरीके से ये टेरा डेटा का सेंटर है, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, ये हमने नस्ट में इनका ये जो सीईओ था उसने मुझे विजिट किया, कहता है यार हमें तो एक्सपर्ट ही नहीं मिलते हैं। मैंने कहा यार एक्सपर्ट तुम्हें मैं करवा देता हूँ, तुम थोड़ा सा मेरे साथ मिल के चलो। तो वो कहता है उसका क्या मतलब है? मैंने कहा तुम हमें इसका सर्वर दो, और हमारे स्टूडेंट्स को जो हम डेटा वेयर हाउसिंग का वो करवाते हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम तुम्हारे सर्वर पे करवाएंगे, और उसमें तुम्हें फायदा ये होगा कि उस वक्त ये एनसीआर कहलाता था, तो जो तुम्हारा ये वेयर हाउसिंग के एक्सपर्टीज, उन लोगों को मेंटल ओरिएंटेशन भी हो जाएगी, तुम्हारे टूल पे एक्सपर्टीज भी हो जाएंगी, और उसके बाद ये टेरा डेटा के नाम से एक नई कंपनी बन गई। और इस वक्त भी पूरी दुनिया में जो कंसल्टेंट जाते हैं ना, वो लाहौर और इस्लामाबाद में जो टेरा डेटा कंसल्टिंग सेंटर है वहां से जाते हैं। सो योर सेंटर अगर हम ये एस्टेब्लिश करते हैं ना, इट कैन बिकम समथिंग वेरी बिग। सो हाशमत, मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान इज ओनली वन थिंग, वी शैल लुक एट द वर्ल्ड मार्केट। और जिस तरीके से आपने कोविड का शुक्रिया अदा किया, नाउ वो जो बाउंड्रीज हैं दोज आर नो मोर देयर। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी एंड हाउ कैन वी रियलाइज इट? जी, आई थिंक जिस डॉक्टर असलम ने भी कहा और आपने भी मेंशन किया, तो this is not a local requirement. This is really a global opportunity. I would say it's a global opportunity, and इसमें what we'll do is we will start off with the Pakistani banks. We'll take a bank in Islamabad, for example, and we will start working with them. So we are applying that technology into a certain bank, and that will give us the expertise that we can. वो जब एक दो थोड़ी सी expertise हो जाती है, then the best way to promote that is that there's a webinar. You do a webinar. ये जिस तरह यहाँ पे तो अभी हम special interest group कर रहे हैं, but and what you do is in that webinar, then you invite all the banks and you say, okay, by the way, this bank is securing their workloads in the cloud by using this architecture and this technology. And just like Dr. Saab keh rahe the, when we are doing that webinar, we are not limited to Pakistan, we are not limited to Middle East, we are not limited to even Europe. It's global, So the core opportunity today is to be the best in something, and what I mean by best is that you have the most expertise, you have the most resources, and then the whole world opens up to that expertise. तो इसमें मेरा एक ये होगा कि हाशमत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द इंडस्ट्री, एंड मुदस्सर के साथ मिल के आई टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द रिसोर्सेज, एंड देन लेट्स मेक इट काइंड ऑफ एग्जाम्पल के जितने जो मैक्सिमम लोग हैं क्वालिफाइड IBM के टूल पे, फाइनेंशियल सर्विसेज के टूल पे, वो पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हो। सो लेट्स कीप दैट इन माइंड, और फिर उसको हम प्लान करते हैं कि हाउ कैन वी मेक इट अ रियलिटी। I think that's a great idea, Dr. Saab. I will certainly take the ownership of the industry part, and not only industry part, but the technology part also, enablement. Because enablement is core in this thing. Absolutely. मुदस्सर, क्या ख्याल है आपका? Excellent, sir. Excellent idea. I'm very much interested or excited हूँ. जो आप Teradata की example दे रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, I had many friends जो Teradata में काम कर रहे थे, फिर बाहर चले गए, और जो आप बात कर रहे हैं exactly, मैं स्वीडन में था, मेरे क्लास फेलोज थे, वो they came on Teradata projects, नोडिया के projects पे काम वो कर रहे थे. नोडिया उनको बड़ा अच्छा बैंक है,
तो और जिस तरह की फैसिलिटीज के साथ वो आते थे, हम कहते हैं इस तरह तो इधर यहाँ पे स्वीडिश भी नहीं रह रहे होते जिस तरह आपको सपोर्ट किया जाता है, तो देवर लिविंग वेरी वेल। तो उस तरह की अगर कोई चीज होती है दैट वुड बी रियली रियली गुड कि हम इस तरह की सर्विस कर सकें which has impact actually। टीचिंग एक चीज है, लेकिन उसको नेक्स्ट स्टेप उसका यही है जो आप जिक्र कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, inshallah, let's take it forward, and thank you very much everybody for joining, and especially thank you Mudassar, and thank you Hashma Saab for your support. Inshallah we will take it forward. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Okay, Allah. Most welcome.